بچے بڑے ایگر ہیں کہ وہ اپنے والد کے لیے ان کی آزادی کے لیے کام کریں اور وہ ریچ آؤٹ کریں اور لوگوں کو بھی. تو کوششیں ہر طرح سے جاری ہیں. تو بہت سے شہروں میں ریلیز نکل رہی ہیں اور اس کو ہم حقیقی آزادی کے نام سے یہ ریلیز جو ہیں ان کو نکال رہے ہیں. ہیوسٹن کو چھوڑے پاکستان آ جائے. پاکستان میں بڑی ایک گڈی لگی ہوئی ہے جو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں. یہ کون سے منرلز ہیں جو امریکن صرف منرلز کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں سارا کچھ اور ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے؟ یا وہ جو جس جمہوریت کی وہ بات کرتے ہیں آیا وہ صرف افریقہ تک محدود ہے؟ انہوں نے پیغام دیا کہ خان صاحب کو ریلیز کریں سپٹمبر میں. اس کے بارے میں بھی کوئی صداقت ہے؟ ان باتوں میں کوئی صداقت ہے یا صرف یہ رومرز ہی؟ کانورسیشن ضرور ہوئی ہے. یہ بات تصدیق شدہ ہے کہ جب یہاں پہ لاسٹ ٹائم وہ آئے تھے تو یہ کانورسیشن بالکل ہوئی تھی. آپ نے وہ بیان سنا ہوگا مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ یہ اس کا خواب جو ہے میاں نواز شریف صاحب نے دیکھا تھا. تو سر یہ بینر کی سیم سچویشن وہی ہے. جو لوگ جوتے برسا رہے تھے وہ بھی بتا دیتا. انہی لمحوں میں ہے خوشی چھپی، انہی لمحوں میں ہے یہ زندگی، یہی لمحے لاتے ہیں پاس بھی، یہی لمحے دیتے ہیں یادیں بھی، ہنستے ہیں مسکراتے ہیں، ملتے ہیں ملاتے ہیں یہ لمحے. ان سب لمحات میں زندگی کے رنگ کو بڑھائے وائٹل کی چائے. وائٹل پیو، زندگی جیو. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی لوگ نیوز اور میں آپ کا میزبان بلاول حسین. جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ ویڈیو کال پر موجود ہیں سجاد برقی صاحب جو اوورسیز پاکستانیوں کے سیکرٹری ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے جی این این کے سینئر صحافی مظہر برلاس صاحب، سی این این ٹرکی کے سینئر اینکر پرسن فخر الرحمان صاحب، سیاسی لوگ کے بیورو چیف بلال حسین صاحب ہمیں یو کے سے جوائن کریں گے. بہت شکریہ آپ تینوں کے ٹائم کا. سجاد برقی صاحب، آپ سے ہم آج کے موقع پر چاہیں گے کہ آپ عمران خان کی رہائی کے متعلق کوئی آپ کے پاس خبر ہے امریکہ سے وہ بتائیں. عمران خان صاحب کے بیٹے ایک بار پھر امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں، اس بارے میں آپ کیا ہمیں بتائیں گے؟ جی سجاد برقی صاحب. جی السلام علیکم ایوری بڈی. اور جیسے آپ نے کہا یوم آزادی مبارک سب پاکستانیوں کو، چاہے وہ پاکستان میں ہیں یا وہ باہر کے ممالک میں رہتے ہیں. ہمارے لیے حالانکہ بہت سے سوالات ہیں اس وقت ہماری آزادی پہ، لیکن آخر ہمارے بزرگوں نے آزادی حاصل کی تھی بہت قربانیاں دے کے، تو ہمیں اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے. ہمیں اپنے قائد کو یاد رکھنا چاہیے، اور قائد سے میرا مطلب قائد اعظم محمد علی جناح ہے. وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا ان کو یاد رکھنا چاہیے، اور انشاءاللہ امید رکھیں کہ ہم یہ خواب ان کا پورا بھی کریں گے اور اس ملک کو ایک مکمل حقیقی آزادی کی طرف لے کے جائیں گے انشاءاللہ. جہاں تک تعلق ہے جی، آپ نے بتایا ابھی کہ کوئی خبر آپ کو بچوں کی بھی ہے اور کچھ، میں تو اس میں کچھ ایڈ نہیں کر سکتا ہوں. میرے پاس کوئی ایسی خبر ابھی کنفرم نہیں ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں، وہ بچے بڑے ایگر ہیں کہ وہ اپنے والد کے لیے ان کی آزادی کے لیے کام کریں اور وہ ریچ آؤٹ کریں اور لوگوں کو بھی. تو کوششیں ہر طرح سے جاری ہیں. آئی وش کہ میں کوئی اس موقع پہ آپ کو کوئی ایسی خبر سنا سکتا کہ جی بالکل کوئی کام ہو گیا ہے. اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ کسی نے گیو اپ نہیں کیا. انشاءاللہ پوری طرح سے ہم کوشاں ہیں اور ہم لگے رہیں گے اپنی جدوجہد میں. یہاں سے بھی جتنی ہماری کوشش ہے اوورسیز پاکستانیز کی وہ جاری ہے. آج کے دن بہت سے شہروں میں دنیا کے جو لوگ آزادی کا دن منا رہے ہیں. میں اس کو جشن نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ میرے دل میں وہ جشن والی فیلنگ نہیں ہے، لیکن ہماری آزادی کا دن ہے تو بہت سے شہروں میں ریلیز نکل رہی ہیں اور اس کو ہم حقیقی آزادی کے نام سے یہ ریلیز جو ہیں ان کو نکال رہے ہیں. اور ہمارا جو ڈائسپورا ہے یہاں پہ ماشاءاللہ بالکل بھرپور طور پہ اس کو ریکگنائز بھی کر رہا ہے اور اس کو سیلیبریٹ بھی کر رہا ہے. سجاد برقی صاحب، عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کوئی امریکہ میں ڈائلاگ ہو رہے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے کوئی ڈائلاگ چل رہے ہیں؟
जी बिल्कुल चल रहे हैं और वो चलते रहे हैं और चलते रहेंगे। देखिए मैंने कहा कि हम गिव अप नहीं करते। देखिए बिलावल साहब, बहुत सी बातें हम पब्लिकली शेयर नहीं करते, क्योंकि होता ये है कि जब आप कोई खबर एक या कोई चीज शेयर कर दें तो वो फिर उसके तनकीद शुरू हो जाती है, उस पर बहुत से लोग अपना अपना व्यू देना शुरू कर देते हैं, और अगर कोई पॉजिटिव चीज हो भी रही होती है तो बहुत जगह रुक जाती है। तो मैं बिल्कुल यकीन से आपको कहता हूं कि बिल्कुल हमारे रवावत भी हैं, हमारी कॉन्वर्सेशंस भी चल रही हैं यहाँ पे, और हम अपनी तरफ से जितना पुश कर सकते हैं अमेरिकन पॉलिसी होल्डर्स को कि भाई आप पाकिस्तान पे अपनी पॉलिसी जो है उसको चेंज करें, उसको देखें कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे। और मेरा ख्याल है कि उसी की वजह से आपने देखा कि अभी जो आए हुए थे यहाँ पे साहब, तो कोई खातर खा उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो अपना एक फंक्शन एक आधा अटेंड किया उन्होंने, और उसमें भी उन्होंने ऐसी बातें की जिसपे बहुत उन पे क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई पॉजिटिव उनको इनपुट यहाँ से मिला है किसी किस्म का। जी फखरुर रहमान साहब। जी बरकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप अभी जिक्र भी कर रहे थे, ये जो अमरीकी सेंटकॉम के चीफ की रिटायरमेंट थी और फिर नए सेंटकॉम कमांडर ने टेक ओवर करना था, तो आपको फ्लोरिडा से या टेम्पा से आपके जो पैक के जो लोग हैं उनकी तरफ से क्या फीडबैक मिला है कि ये दौरा कैसा रहा, इसमें क्या वहाँ पर जो मुलाकातें हुई हैं वो किस लेवल पे थी? क्योंकि जो प्रेस रिलीज यहाँ पे जारी किया गया था उसमें तो ये कहा था पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप। तो हमें मिलिट्री लीडरशिप का तो पता चल गया, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप आपके ख्याल में वहाँ पे कौन सी थी जिससे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई होगी? भाई जी, जैसे आपने खुद ही बताया कि उनके जो कोई उन्होंने नाम नहीं बताया या उन्होंने कोई ऐसा पर्टिकुलर उसका नहीं बताया कि कोई उनकी जो मीटिंग्स हुई हैं किसके साथ हुई हैं। और हमारे भी जो जराए हैं वो यही कहते हैं कि उनकी मीटिंग सिर्फ मिलिट्री लेवल पे हुई हैं। सेंटकॉम के जो इवेंट था वो उसमें उसके लिए आए थे, जनरल कोरेला की जो चेंज ओवर हुआ है उसके लिए। कोई एज फार एज वी नो कोई पॉलिटिकल मीटिंग उनकी नहीं हुई, और ना ही कोई किसी हाई रैंकिंग किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने उनको कहीं भी मदऊ किया है या उनके साथ कोई ऐसी मीटिंग की है। वी डोंट नो ऑफ एनी सच मीटिंग। अगर कोई बहुत खुफिया हुई है तो आई डोंट नो। जी मजहर प्रहलाद साहब, आप भी सवाल कर लें, फिर बिलाल हुसैन साहब वन बाय वन। जी मजहर साहब। यार मैं तो एक तो बर्की साहब को ये मैंने कहना था कि आप ह्यूस्टन को छोड़े, पाकिस्तान आ जाए। पाकिस्तान में बड़ी एक बड्डी लगी हुई है, जो अवार्ड दिए जा रहे हैं हर एक को, और पता नहीं किस चक्कर में दिए जा रहे हैं अवार्ड। तो उनका अगर कोई प्रोग्राम है अवार्ड का तो वो भी आ जाए। इधर तो बुक मेला लगा हुआ है अवार्ड का। गुजारिश ये है कि जो आजादी इस दफा बर्की साहब मैंने पहली दफा देखा है कि लोगों में वो जोश नहीं था, लोग लातल्लक थे, और जो सड़कों पे लोग नजर भी आए पाकिस्तान में वो सिर्फ पीटीआई के लोग नजर आए। ये बाकी जमातें कहाँ थी जो अवार्ड लेने वाली है? अमेरिका भी पहुंच जाती हैं ये जमातें, और मुल्कों में भी पहुंच जाती हैं। एक तो ये बता दें कि ये जमातें कहाँ थी। दूसरा ये बता दीजिए कि क्या अमेरिका में भी कोई जुर्म है कि कोई दुकानदार या कोई रेडी वाला या कोई बेचारा कोई स्टॉल लगा के लड़का किसी लीडर की तस्वीर बेचे तो उसे पुलिस गिरफ्तार कर ले? तो उधर भी इस तरह का चक्कर है या नहीं? ये दो तीन बातें जरा बता दीजिए। जी बिल्कुल, आपने बड़ी बड़ी दुरुस्त बात की। मैं भी देख रहा था अवार्ड जो दिए जा रहे हैं, देव क्या बांटे जा रहे हैं। मैं तो मेरे दिल में आया था कि इनको चाहिए कि कुछ अब 2-4 अवार्ड उसमें ऐड कर लें। कोई एक बेशर्मी का अवार्ड ऐड कर लें, कोई एक बेगैरती का अवार्ड ऐड कर लें, कोई धोखाधड़ी का अवार्ड ऐड कर लें, तो इसके लिए भी लाइनें लग जाएंगी, बहुत लोग आएंगे। तो जहाँ तक हमारा ताल्लुक है बदा साहब, हमने तो ना कभी
कोई अवार्ड मांगे हैं, ना कभी ख्वाहिश की है किसी अवार्ड की। काम करते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने कॉज के लिए, और अवार्ड जो है दे मीनिंगलेस सी चीज होती है, आज है कल नहीं है, हु केयर्स अबाउट देम। और वो भी इन लोगों से वो अवार्ड लेना जो कि टोटली रिजेक्टेड लोग हैं हमारी कौम के, तो दीज अवार्ड्स डोंट मीन एनीथिंग। और जहां तक आपने वो बात की, कितने शर्म की बात है, मैंने बल्कि एक तस्वीर देखी एक थाने की या पुलिस वाले की, जिसने वो सामने पूरी वो खान की जो कोई बेच रहा था टी शर्ट्स, उसकी लगाई हुई है, पूरी मेज सजाई हुई है, और वो ऐसे खड़ा है कि जैसे उसने पता नहीं कितना असला जो है वो बरामद कर लिया है और उसको वो उसकी तस्वीर खिंचवा रहा है। तो ये इस लेवल पे समझ लें कि अब हमारी हुकूमत और हमारे जो वहाँ के एहलकार हैं वो आगे हुए हैं, तो वेयर आर दे गोइंग विद दिस? मैं तो समझता हूँ कि एक अजीब मजाक बना दिया उन्होंने मुल्क का, कि जो एनीबडी सीरियस जो उसको देख रहा है वो हंसता ही होगा कि ये क्या मुल्क है कि वहां पे आप कोई चीज तस्वीर नहीं बेच सकते किसी की, आप झंडा नहीं बेच सकते, आप उठा के झंडा निकल नहीं सकते बाहर, आप फलस्तीन का झंडा नहीं आप लेके निकल सकते, तहरीक इंसाफ तो दूर की बात है। तो शर्मनाक बात है। जी बिलाल साहब। जी बहुत शुक्रिया बिलावल। मेरा बरकी साहब से सवाल है। सर आपने देखा ही है कि पाकिस्तान में 13 अगस्त और 14 अगस्त की जो खान साहब की कॉल थी, पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में निकले, उन्होंने खान साहब के लिए उनकी कॉल को भी लबैक कहा, झंडे भी निकले, खान साहब की तस्वीरें भी निकली, और उसके बाद हमने पकड़ दकड़ और बात आड़ भी देखी। सर आप नहीं समझ पा रहे कि ये पाकिस्तानी तो जो करना चाहते थे वो तो कर रहे हैं, लेकिन उन पे इतना जुल्म कर दिया गया है, और पूरी दुनिया से ना कोई ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है, ना कोई इस चीज़ की बात कर रहा है कि लोगों पे ये जुल्म ज्यादा बंद की जाए, कोई इंसाफ का इदारा बाकी नहीं रह गया। अगर ये सारी चीजें ऐसे ही चलनी है तो लोगों ने बेचारों ने डंडे खाने के लिए तो बाहर निकलना ना। इसमें प्लीज कोई कमेंट करे कि आपकी साइड से कोई अमेरिकन लीडरशिप के सामने ये ह्यूमन राइट्स का कोई मसला उजागर होगा कि नहीं होगा? देखिए जी, अफसोस से कहना पड़ता है कि ह्यूमन राइट्स और सिविल राइट्स की जब हम बातें करते हैं तो ये जब अपने मकसद के लिए किसी को ये नारा यूज करना होता है तो तब सब हुकूमतें, सब पॉलिटिकल लीडर्स इसको यूज करते हैं, लेकिन जब आपको अपने मतलब नहीं होता तो आप इस नारे को भूल भी जाते हैं और आप दूसरी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। मैं बिल्कुल ये एडमिट करूंगा आपके सामने कि अमेरिका भी उन्हीं ममालिक की लाइन में खड़ा है कि जब इनको अपना मकसद होगा तो बिल्कुल ये करेंगे, और आजकल नहीं कर रहे। आई मीन सबसे बड़ी एग्जांपल गाजा की है, देखें कि वहां पे क्या क्या जुल्म हो रहा है, कोई देख नहीं रहा उसकी तरफ, सब अपने इग्नोर कर रहे हैं उसको अपने तरीके से। और यही हाल इस वक्त पाकिस्तान का है कि हमारे वहां पे दबाव डालने के बावजूद, हमारे पॉलिटिशियंस के साथ पुश करने के बावजूद उनका ऐसे लगता है कि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनकी पॉलिसी जो है वो ये डिक्टेट करती है कि इस वक्त आप पाकिस्तान के जो वहां पे मिलिट्री लीडर हैं उनके साथ आप बातचीत रखें और उनका कॉन्फिडेंस जो है वो अपने साथ रखें, क्योंकि पता नहीं आपको कब उनकी जरूरत पड़ जाए। और जरूरत के मुताबिक ये सब चीजें की जा रही हैं। आई विश कि सारी दुनिया में हम इस वक्त देख रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स जो है वो पामाल हो रहे हैं हर जगह पे, बहुत ही ममालिक में, लेकिन कोई इन चीजों के लिए खड़ा होने को तैयार नहीं है। तो इसमें लेसन तो यही है कि हम सबको अपना अपना काम खुद करना पड़ेगा। हम कितनी देर तक किसी और की तरफ देखते रहेंगे? और ये लेसन मेरे ख्याल पाकिस्तानी अवाम लोगों को भी ये पहुंच जाना चाहिए कि बाहर के ममालिक जो है शायद आपकी मदद कर दें, लेकिन असल बर्डन जो है इसका वो आप ही को उठाना पड़ेगा। अपनी आजादी के लिए आपको खुद बाहर निकलना होगा, आपको ये जंग खुद लड़नी होगी। The deal should be closed by Thursday. Let legal handle the structure. Yes, I'll be in Gulberg for the lunch break. ਤੀਲ ਡੱਬਾ ਵੇਚ ਲੋ ਲੈ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੇਚ ਲੋ Your vicinity matters. You deserve better. इत्तेहाद टाउन लाहौर, रहीम यार खान और सियालकोट की शानदार डिलीवरी के बाद नाउ लॉन्चिंग इत्तेहाद टाउन फेज 3 पाइन एवेन्यू पर वाक़े मुस्तकबिल की 4 नई स्ट्रक्चर रोड से कनेक्टेड
लाहौर रिंग रोड और फिरोजपुर रोड से डायरेक्ट एक्सेस, एयरपोर्ट, DHA और रायवन रोड से 15 मिनट की दूरी पर। 3 साल का आसान पेमेंट प्लान, बुकिंग 10% से और सिर्फ 1% माहाना किस्त अदा करके अपने प्लॉट के मालिक बने। इन्वेस्ट विद द मोस्ट ट्रस्टवर्दी रियल एस्टेट ब्रांड ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि फायदा इसी में है। इत्तेहाद टाउन फेज 3। For booking and details, please call 042 111 998877. At teen डब्बे दे 50 रुपए. Yes, yes. I'm just closing the deal with the teen डब्बास. सजाद बरकी साहब, एक जैसे कराची में PTI के लोगों ने बड़ा एक शो किया है, लाहौर में, अंदरून सिंध में, बलोचिस्तान में, पिंडी में, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद, तो एक जो बरी के GPO चौक पे भी हुआ, बरी बाग रोड में, तो वहाँ कोई बैनर एक लगा हुआ था, उसमें तस्वीरें थी कोई ये बिलावल के पसंदीदा कुछ लोगों की। अब लोग, हमें तो जो वीडियो मिली है उसमें लोग बरसा रहे हैं, बिलावल कह रहे हैं कि फूल बरसाए जा रहे हैं। आपके पास कौन सी वीडियो? मैं सॉरी बल्ला साहब, मैंने देखी नहीं है वो वीडियो, मैं अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं उस पर कमेंट करूं। लेकिन सर वो बैनर था नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का और मरियम नवाज का, पाकिस्तान आजाद जो करवाया है वो इन्होंने करवाया है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं करवाया। नेशनल मीडिया पर कोई तस्वीर नहीं दिखाई गई। मैं देखे जी ये बात भी कि लोग जूते बरसा रहे थे, वो भी बता देता। बिल्कुल, और जूते बरसाने भी चाहिए। बल्ला साहब देखें, बड़ा ये गुस्सा है इस वक्त। मैं यहाँ पे बैठ के जो देख रहा हूँ कमेंट्री लोगों की और सोशल मीडिया के ऊपर, लोगों को बड़ा गुस्सा है इस बात का कि जितने भी बड़े बड़े इन्होंने बैनर्स लगाए हैं और जो इश्तिहारात दे रहे हैं ये, उसमें समहाउ कायदे आजम की तस्वीर मिसिंग है। और उसमें ये लोग क्लेम ऐसे कर रहे हैं जैसे कि ये 3 लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद करा दिया है और यही आज़ादी जो है उसको उसके जश्न में शामिल है। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल बरहक है वो लोग जो जूते मार रहे हैं। अगर कायदे आज़म के बगैर आप पाकिस्तान की बात करें तो बिल्कुल आपको जूते ही पड़ने चाहिए। बहुत ठीक किया जिन लोगों ने किया। मतलब बल्ला साहब, आपने शायद पिछला एक माजी में मरियम नवाज साहबा ने एक बयान दिया था करतारपुर राहदारी पे, जो इमरान खान के दौर में शुरू हुआ था, तो आपने वो बयान सुना होगा। मरियम नवाज साहबा ने कहा था कि ये इसका ख्वाब जो है मियां नवाज शरीफ साहब ने देखा था। तो सर ये बैनर की सेम सिचुएशन वही है। फखरुल रहमान साहब आपसे जात बरकी साहब से कुछ पूछें। ये जो ख्वाब, फखर साहब एक मिनट, ये जो ख्वाब देखा था ना करतारपुर का, उन्होंने कहा कि उनके बाप ने देखा था, तो मैं उनके दादा की बात करता हूँ। वो ख्वाब भी जरा सईदा आबदा हुसैन की किताब पढ़ ले, जिसमें वो लिखती हैं कि जब भी हमारा ट्यूबवेल खराब होता था तो मेरे वालिद साहब लाहौर से एक मिस्त्री शरीफ को बुलाया करते थे, वो ट्यूबवेल ठीक करता था। अब ये किताब की बात है, मैं खुद से तो नहीं कर रहा। बाकी नासरा जवेद इकबाल ने भी इनके बारे में बताया था कि किस तरह ये गटर्स के ढक्कन चोरी करते थे और एक घोड़ों को खुरियां लगाते थे। तो कभी ये पाकिस्तान का ख्वाब देखते हैं, कभी उधर मेरा था लोहा कूटते कूटते ये ख्वाब देखते हैं, कभी करतारपुर का और कभी किसी का। ये सारी दुनिया को पता है कि करतारपुर कॉरिडोर इमरान खान का था, उन्होंने खोला, और नजवत सिंह सिद्धू समेत बहुत से सिखों ने, कनाडा अमेरिका के सिखों ने भी इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। वो उसके हवाले से उन्होंने गाने भी बनाए, उनको खराजे तहसीन भी पेश किया। बिल्कुल, मैं इस पे एक छोटा सा कमेंट कर दूं कि बल्ला साहब जो कह रहे हैं इतनी सच बात है। हम यहाँ पे देखते हैं कि जब भी हमारी सिख बरादरी से मुलाकात होती है, उनकी लीडरशिप से मुलाकात होती है, तो जिस किस्म का उनके दिल में रिस्पेक्ट और प्यार है इमरान खान के लिए इस राहदारी के मामले पे, आई टेल यू इट्स अनबिलीवेबल। ये लोग चाहे जितने मर्जी ख्वाब देखते रहे, पता नहीं कौन सी गोलियां खा के ये ख्वाब देखते हैं। ये उनके, आप किसी सिख से बात करके देखें वो किस तरह, किस प्यार से और किस ताजीम से वो इमरान खान का नाम लेता है। तो आई थिंक द क्रेडिट गोज टू इमरान खान व्हेन इट कम्स टू द सिख ब्रादरी। मैं तो बरकी साहब आपको सिर्फ यही, आपकी नॉलेज में शायद इजाफा हो जाए, आज पंजाब के जनाब इंतहाई होनहार वज़ीर आला जो थी, उन्होंने एक यौम आज़ादी के हवाले से तकरीब से खिताब किया और उन्होंने कहा कि
बड़ा खराज तहसीन पेश किया उन्होंने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल को, और कहा कि उन्होंने पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पे एक नए पाकिस्तान का इंट्रोडक्शन कराया। ये दुनिया के नक्शे पे इंट्रोडक्शन आपको भी अगर नजर आए तो बताइएगा वहाँ पे पाकिस्तानी अमेरिकन को। जी बिल्कुल, मैं सच पूछें तो मैं कहता हूँ बिल्कुल कराया है उन्होंने। पाकिस्तान का एक नया इंट्रोडक्शन सारी दुनिया के सामने दिया है उन्होंने पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया के मुकाबले में लाके खड़ा कर दिया है। उन्होंने सारी दुनिया को ये बताया और दिखा रहे हैं कि दुनिया में आप लोग जो सारे सिर्फ नॉर्थ कोरिया की बातें किया करते थे, जहाँ पे के लोगों के कोई हकूक नहीं है, जहाँ पे के किसी किस्म की आजादी नहीं है, तो हम एक आपको और मुल्क दिखाते हैं जिसका नाम पाकिस्तान है। वो भी बिल्कुल उन्हीं तरीकों से चलाया जाता है। वहां भी लोगों के घरों पे हमले होते हैं, वहां भी लोगों को किडनैप किया जाता है, वहां भी लोगों को कैद सुना दी जाती है बगैर किसी एविडेंस के। तो जी हाँ, बिल्कुल मुतारफ कराया है पाकिस्तान को, लेकिन ये पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया 2 है। जी फखरुल रहमान साहब, लास्ट में आप कुछ कह रहे थे तो सजाद साहब से कर ले, और बिलाल हुसैन साहब आप भी। जी मैं बरकी साहब आपसे ये कहूँगा कि ये अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने यौम आज़ादी पाकिस्तान के ऊपर एक पैगाम दिया है। मिनरल्स और हाइड्रोकार्बन के ऊपर जो है वो कहते हैं कि हम चाहते हैं हमारा ताउन बढ़े। ये कौन से मिनरल्स हैं जो अमेरिकन सिर्फ मिनरल्स के हवाले से देख रहे हैं सारा कुछ, और उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है, या वो जो जिस जमहूरियत की वो बात करते हैं आया वो सिर्फ अफ्रीका तक महदूद है, उसकी तारीफ, उसकी डेफिनेशन, या उसमें आप समझते हैं कि कोई पाकिस्तान के अंदर या दीगर जो ममालिक जहाँ पे इस तरह का निज़ाम चल रहा है, दूसरा मुल्क आपके सामने है इजिप्ट है, तो क्या समझते हैं आप कि ये जो मिनरल्स हैं और जिस मिनरल्स की वो बात कर रहे हैं और वो जिधर हैं या जीपी में हैं या केपीके में हैं और या बलूचिस्तान में, तो वहाँ तो अमन ओमान की सूरत हाल बड़ी ख़राब है। दाइश और टीटीपी और जो BSA है, इस हवाले से अभी पाकिस्तान और अफ्रीका के डायलॉग हुए हैं इस दहशत गर्दी में, और उन्होंने कहा कि हम मिलकर इन सारी तंजीमों का मुकाबला करेंगे। तो व्हाट इज़ योर टेक? आप वहाँ अमेरिका में बैठ के क्या समझते हैं कि ये एक तरफ मिनरल्स, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग और मिलकर लड़ने का आज़म? जी बिलाल साहब आप भी कर ले, सजाद साहब दोनों सवालों का इकट्ठा जवाब दीजिएगा। जी बिलाल साहब। सजाद साहब, ये जो एम्बेसी वाले कुछ लोग बातें उड़ा रहे थे कि इन्होंने पैगाम दिया कि खान साहब को रिलीज करें सितंबर में, इसके बारे में भी कुछ सदाकत, इन बातों में कुछ सदाकत है या सिर्फ ये रूमर्स ही? सर मैं पूरा नाम नहीं मैं सुन सका, किसका नाम लिया आपने? अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो। ओ मार्को रूबियो ने? नहीं सर, कोई तस्दीक शुदा रिपोर्ट नहीं है। ये सिर्फ गेस्ट वर्क है लोगों का। कॉन्वर्सेशन जरूर हुई है, ये बात तस्दीक शुदा है कि जब यहाँ पे लास्ट टाइम वो आए थे तो ये कॉन्वर्सेशन बिल्कुल हुई थी और ये कहा गया था कि आप इमरान खान की जो रिहाई की बात नहीं थी, कि इमरान खान और PTI की जो सिचुएशन है उस मुल्क में, आप उसको उस पर जाके देखें और उसको रिजॉल्व करें, उसको ठीक करें। तो ये वाली कॉन्वर्सेशन जो है ये अभी भी है और ये टेबल पे पड़ी है, इसको ये कहीं चली नहीं गई। और ये मैं समझता हूँ कि इन द लॉन्ग रन भी नहीं, इन द शॉर्ट रन ये अभी इसके जवाब जो है वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को देने पड़ेंगे। कमिंग बैक टू जो मिनरल्स की बात आपने की है सर, ये दुनिया में इस वक्त एक नया सब्जेक्ट जो है ये शुरू हुआ है। और पहले हम ऑयल की बात किया करते थे, अब ये बात बढ़ के रेयर अर्थ मिनरल्स जो है उनकी तरफ चली गई है। और ये समझा जा रहा है कि ये जो 4-5 ममालिक हैं हमारे इस एरिया में, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, काजाकिस्तान, ये और वो जो बेल्ट है, वहाँ पे समझा जाता है कि तकरीबन 7 से 8 ट्रिलियन T से मैं कह रहा हूँ ट्रिलियन डॉलर्स के जो हैं रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो वहाँ पाए जाते हैं। तो उस सिलसिले में हर किसी का ख्वाहिश है कि वो वहाँ कंट्रोल किसी तरह हासिल करे या वहाँ के साथ रवाबित पैदा करे कि वहाँ से वो रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो उनके साथ बिजनेस कर सके वो वहाँ पे। तो दिस कॉन्वर्सेशन हैज बीन गोइंग ऑन फॉर अ व्हाइल और ये चलती रहेगी।
लेकिन यहाँ पे हम भी जो अमेरिकनों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये सब तभी कर पाएंगे जब उस मुल्क में अमन होगा, जब वहां के जो लोकल लोग हैं जहां पे ये मिनरल्स हैं, और जो 2 प्रोविंसेस में आप कहते हैं कि मिनरल्स हैं, जब वो 2 प्रोविंसेस के लोग आपके साथ ख्वाहिशमंद होंगे बिजनेस करने के लिए, तो फिर तो आप कर सकेंगे। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप जबरदस्ती वहां से मिनरल निकाल के ले आएंगे तो इट विल नॉट वर्क। ये आप बहुत जगह पहले ट्राई कर चुके हैं, और अफ्रीका के कई ममालिक में हमारे पास एग्जांपल्स हैं जहाँ पे के खून रेजी हुई, जहाँ पे के मुल्क तबाह हो गए इसी वजह से, क्योंकि रेयर अर्थ के वहाँ पे वो चीजों के लिए ये गए थे और लोकल्स ने उनके साथ ताउन नहीं किया। तो बड़ी डेंजरस सी सिचुएशन है ये रेयर अर्थ मिनरल्स की। जी बहुत शुक्रिया आप सबके टाइम का। जी नाज़रीन, आपने सिद्धार्थ बर्की साहब की गुफ्तगू सुनी है, फखरुर रहमान साहब के सवालात और मजहब अल्लाह साहब, बिलावल हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आप सबके भी टाइम का। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़। एक्सेल केबल्स 99.99% प्योर कॉपर से तैयार शुदा, हमारा मयार, हमारा यकीन। एक्सेल केबल्स, रोशन पाकिस्तान की पहचान।